आमना वैसी मेरा नाम है, ठीक है, असल नाम पौधे वाली है, सो जस्ट फोकस ऑन पौधे वाली. हाँ ओके, अच्छा ठीक है. हाँ सही है, ठीक है. Guys, I found her Instagram account like a while ago. She has the cutest merch and stickers. They are plastered everywhere in my room now. So just amazing work. I was like, how do I not know this artist and how is she in Lahore? Even after buying her merch, I didn't know she was in Lahore, by the way. I like found out when, how did I find out you were in Lahore? I don't know. She doesn't know either. But guys, super underrated. It's crazy the amount of like world building and character stuff she does. It is insane. Also look at how cute this is. काफी adventure time inspired है. So yeah, the title of my talk is Don't Force It, How Passion Shapes Character Design and Art Direction. So yeah, let's just get started with it. I'm Podewali, by the way. I know name definitely ajeeb hai, theek hai, like Podewali. So yeah, as artists, like I'm just gonna start off. As artists, हमारे बहुत ज़्यादा stressors होते हैं, like on the daily, ठीक है. अगर हम बड़े artists भी बन जाए ना, like सब कुछ achieve कर लें, और फिर भी we face these negative thoughts. और especially अब सारे artists का जो काम है वो social media पे होता है, ठीक है. That's like we use social media. It's like our main bestie, सही है. So, but जब आप सोशल मीडिया को भी देखते हैं तो क्या है यार, मतलब लाइक्स ही नहीं मिल रहे हैं, इंगेजमेंट बिल्कुल फुल ऑन क्रैश हो रही है, एल्गोरिथम लाइक यू नो इट्स बैड. और फिर आप बाकी आर्टिस्ट को देखते हो और उनका काम इतना फिट जा रहा है, लाइक व्हाट द हेल, लाइक आई मीन उनको लाइक्स भी मिल रहे हैं, इंगेजमेंट भी अच्छी हो रही है, सब कुछ फिट जा रहा है ना उनके लिए. और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट you get to see the fancy schmancy gallery artists. Like, what's up with that? The appetizers? I mean, come on, guys. Like, so these are the negative thoughts जो आपके दिमाग में एक stress build up हो रहा है, ठीक है? And on top of that, we all need organic followers. I know मैंने Jared Leto से थोड़ी सी चीजें inspired ले ली हैं, but yeah, we need that organic following. We need people to relate with our work. We need genuine support for our work. ठीक है? This is like something, मतलब that should be our goal, कि लोग हमारे काम से relate कर सकें हमारी story से. तो जब आपके सारे ये stressors होते हैं आपकी life में, तो obviously आप frustrate हो जाते हो. You get angry, like क्या हो रहा है यार? मतलब what's my direction? And then you get sad. So उसकी वजह से फिर ये होता है कि आप आर्ट को फोर्स करते हो. You end up making forced art, ठीक है? Because you're in a rat race, you're under a lot of stress. आप एक competition को as an inspiration ले रहे हो. आप दूसरे आर्टिस्ट को देख रहे हो, उनकी लाइफ्स को देख रहे हो कि यार वो क्या पोस्ट कर रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूँ यार, मतलब what is going on? फिर आप आर्ट को फोर्स करना शुरू कर देते हो, और जो उससे आर्टवर्क प्रोड्यूस होता है वो ठीक है, शायद कुछ टाइम के लिए हिट कर जाए, वायरल हो जाए, बट देन व्हाट, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद आपकी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना वो ख़त्म होने लग जाती है. तो इफ़ यू वांट कि आप हार्ट टचिंग आर्ट बनाओ, सोलफुल आर्ट बनाओ, जेन्युइन आर्ट बनाओ, और you also learn how to cope with these stressors, you want to know कि यार कैसे मैं बिल्कुल पॉजिटिव और रे ऑफ सनशाइन बन जाऊँ ना, लाइक कोई भी अगर मुझे स्ट्रेस है मैं उससे डील कर दूँ, then fear not, I got you guys, ठीक है. I will share these tips, I will share everything जिससे जो कि एटलीस्ट मैंने सीखा है अपने जर्नी से, और जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे ये नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मुझे भी आती हैं. इट्स नॉट लाइक आई एम इम्यून टू देम, आई ऑल्सो गेट देम ऑन द डेली. सो आई एम गोना टेल यू थ्रू माई आर्ट जर्नी. सो इसको समझने के लिए वी नीड टू गो टू द ओरिजिन स्टोरी. पौधे वाली कैसे स्टार्ट हुई, कैसे, लाइक हाउ डिड शी केम इनटू एग्जिस्टेंस. This goes back to a very sad time in my life. ठीक है, I was going through some sad stuff, whatever. Like मेरी motivation बिल्कुल नहीं थी, because
I have been working as a freelance artist for the past 1 decade, लेकिन उस जो शुरू वाला मेरा काम था, it wasn't clicking with me. ठीक है, you cannot say कि like वो मेरी identity थी sort of. तो इससे क्या हुआ कि मेरी inspiration जो है ना एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गई, and I was just like feeling really demotivated और कोई direction नहीं है. और इसी सब के दौरान, because I was in an art block, I picked up a hobby, gardening. ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ का कैनन इवेंट होने वाला है, तो मैंने पिक्चर अच्छी नहीं ली, मेरे पास यही पिक्चर है, you gotta deal with it. Like these were my first plants जो ऊपर हैंग कर रहे हैं. I owe all of my success या जो कुछ मैंने अभी तक अचीव किया to these 4-5 plants. ठीक है, I owe everything to them, and you will see how I came to develop my identity, my style, how I came to have a diverse portfolio, और कैसे मुझे मेरे काम को recognition मिली just because of gardening. So yeah, like coming back to gardening, I was fully invested into it. And by the way, मैं botany की कोई बड़ी fan नहीं थी, मुझे plants बहुत meh लगती थी. I'm like, okay, पौधे ही है ना, क्या है मेरे पास. But when I got into gardening, I was like super into them. मतलब नर्सरी वालों को मेरी शक्ल याद हो गई थी, because मैं इतना ज़्यादा जाती थी पौधों के लिए. आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने गार्डन को I had a terrace space, I didn't have a lawn or anything like that. So मैं terrace space पे ही अपना गार्डन ग्रो करती रही. Wait a second. Yeah, so आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ more plants आने लगे, succulents, low light plants, और full sun वाले plants, different type of plants. And I started photographing myself with these plants. फिर मेरे indoor plants भी आ गए, घर के अंदर भी पौधे आ गए हैं. सही है, पौधों ने full on कब्जा कर लिया मेरे ऊपर. So yeah, that's my garden. ठीक है, that's my terrace garden. And I did all of that. Like the point of sharing these pictures is कि मैं कितनी हद तक involved हो गई थी इस gardening के. मतलब it consumed me. मतलब मेरी अम्मी को कपड़े टांगने की जगह नहीं थी या like garden, because I would be like नहीं धूप ब्लॉक हो रही है, मेरे पौधों को धूप नहीं मिल रही. सही है. So like I was that much involved in this hobby. और इससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एक betterment की तरफ जा रही थी. मेरी रूटीन सेट हो गई थी. I was growing food and all of that stuff. So that's when I thought, hey, why don't I share about this with with other people, because it's such an amazing hobby और मेरे ऊपर इतना अच्छा impact किया है. So that's when I started cooking and I made पौधे वाली. ठीक है, I know name बहुत अजीब सा मैंने pick किया, लेकिन I went with it. और initially I started sharing these layouts जिसमें I would जो कुछ मैं सीख रही होती थी gardening से related, I would just share it in these like botanical illustration sort of layouts. फिर आहिस्ता आहिस्ता I started taking more pictures of my plants. फिर वो layouts से और ज़्यादा मुझे आहिस्ता आहिस्ता artistic side मेरी थोड़ी सी evolve होती गई. Through plants I started seeing characters in them. और फिर मेरे layout और ज़्यादा advance होते गए. Like मतलब एक build, you can see the build up. You can see कि एक color palette develop हो रही है. अब मैंने इससे पहले कोई color theory को कोई study नहीं किया हुआ, कोई mood boards नहीं बनाए हुए. It was just happening very naturally and very organically. ठीक है, ये सारे colors जो हैं, you see the color palette here, ये सारी nature से inspired है from my garden. ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो layouts जो है ना, उनसे और ज़्यादा नया वर्क डेवलप होता गया. एक कलर पैलेट, यू विल नोटिस द कलर पैलेट कि वो एक डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग रिजेम्बलेंस, डेली लाइफ रिजेम्बलेंस विद प्लांट्स. ठीक है, लाइक दिस इज अ प्रॉन, और वो उसके साथ बैंगल्स के साथ आई सॉ कि वो बिल्कुल आई सी सिमिलैरिटीज एंड ऑल दैट स्टफ. Then I started taking my pictures with plants. Abhi, this is just me with plants. Then it sort of consumed me so much कि मैंने कैरेक्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए, प्लांट रिलेटेड कैरेक्टर्स. अब नाउ यू विल नोटिस कि जो मेरी कलर पैलेट है, इट इज लाइक आई डिडंट नो कि ये खुद ही बन रही है. ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक वे में डेवलप हो रही थी.
It wasn't like कि मैंने सोचा था कि oh यार like रेड का ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मुझे नहीं पता था, ठीक है, I didn't know, मैंने कोई कलर थ्योरी नहीं पढ़ी हुई थी, it just came naturally to me because मैं अपने गार्डन में देख रही थी कि यार एक लाल गुलाब है और उसकी ग्रीन स्टेम है, they look nice together. See, so like इससे मेरी कलर पैलेट डेवलप होने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता I was creatively using these प्लांट एलिमेंट्स. अब ये एक फेस हगर मैंने बनाया हुआ है, एक मॉन्स्टेरा का लीफ गिरा हुआ था एंड इट काइंड ऑफ लुक लाइक अ फेस हगर एंड इट्स लाइक अ वियर्ड एलियन सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, सो आई मेड दैट. फिर मैंने वो आई डोंट नो लाइक सम फैशन सॉर्ट ऑफ असॉर्टमेंट वहाँ पे हुई है, ठीक है. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर सच कैरेक्टर्स. ओह एंड अनदर थिंग, इससे पहले मैंने कभी भी फोटोग्राफी को एक्सप्लोर नहीं किया. लाइक आई डोंट नो हाउ टू टेक पिक्चर्स, सो this was all like coming to me so naturally and organically and I was just using my natural daylight. मेरे पास कोई fancy equipment नहीं है, ये मेरे साइड पे विंडो थी, वहाँ से धूप आती थी, तो मैं I just use that and normal camera. It's not like a fancy schmancy camera, कुछ भी नहीं है. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता I started like यार अब मैंने ना I want to share more information. बिकॉज मेरा जो पॉइंट था पेज का वो अवेयरनेस स्प्रेड करना था या अपनी हॉबी के बारे में लोगों को चीज़ें बतानी थी कि क्या हो रहा है लाइक गार्डन में ऑल दिस बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई स्टार्टेड मेकिंग दीज बोटैनिकल इलस्ट्रेशंस. अब आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़े से डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ, लाइक डिजिटल आर्ट को एक्सप्लोर कर रही हूँ और ट्रेडिशनल आर्ट को भी, बिकॉज दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल आर्ट. और ये जो बटरफ्लाइज है they came into my garden by the way, so it's like all natural source of inspiration. It wasn't like कि Pinterest पे जाके मैंने butterflies देखी और ये वो. Obviously Atlas moth जो है वो तो इधर नहीं है, but yeah, that's what I was learning. और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको अपनी different ways में express करना start किया. फिर जो art थी it sort of evolved into more concept based work, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम था जो कि नेचर था. सो अब जो मिडिल पीस है इट्स अ गॉश पेंटिंग और इसके अंदर मैं बेसिकली माइसीलियम को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक माइसीलियम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो दो प्लांट्स को या प्लांट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है. सो इट्स जस्ट लाइक द ऑल सीइंग आई सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग, जिससे एक सिक्स सेंस नहीं खुल जाती. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. और इसी तरह डेथ हॉक मॉथ मैंने एक दिन अपने गार्डन में देखा एंड आई इलस्ट्रेटेड. अब से द पॉइंट इज कि मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है वो कोई पिंटरेस्ट से या किसी और आर्टिस्ट का काम देख के या कहीं और से नहीं है. इट केम फ्रॉम माई पैशन, इट केम फ्रॉम माई गार्डनिंग, फ्रॉम माई गार्डन, जिसमें मैंने इतना अपना दिलो जान अंदर दिया हुआ था. सो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर डेवलप्स होना शुरू हो गए. मेरे जो लाइक नेचर इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स हैं उनके आई स्टार्टेड मेकिंग दीज विजुअल्स जो कि मेरी फोटोग्राफी से लिंक्ड है. इफ़ यू नोटिस मेरे जो पोर्ट्रेट्स मैंने शुरू में लिए थे बिल्कुल उसी तरह का स्टाइल है, बट इट्स अ डिफरेंट मीडियम. सो वाइब सेम है, लाइक कलर पैलेट सेम है, एस्थेटिक सेम है. दिस इज ऑल्सो डिजिटल पेंटिंग. और मेरा काम और ज़्यादा रिफाइन होता गया, लाइक रेंडरिंग वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, कलर पैलेट वाइज. So you see कि like every artwork उसमें context is always nature. So yeah, it started from here, from these layouts, and then it developed into creative photography और फिर वो develop हो गई into digital illustrations and character design and sort of एक storytelling चीज़ develop होना start हो गई. But you will notice कि इन सब की aesthetic और vibe same है. Like you'll see कि यार ये एक ही person का काम है. Okay, so before I share about my Beautiful Head series, the name of this series is Beautiful Head. I need to tell you a little backstory about it. So अब मेरा जो गार्डन है ना वो full on lush किस्म का, फिट किस्म का बन गया, ठीक है. उससे क्या फ़ायदा हुआ कि इंसेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए, बर्ड्स आना शुरू हो गए, अंडे देना शुरू हो गए, बिल्ली आ गई उसने बच्चे दे दिए. सो वो एक छोटी सी स्पेस जो है वो एक सेंचुरी बन गई, ठीक है. और अब मैं एक स्टॉकर की तरह अपनी विंडो से वो सब कुछ देख रही हूँ एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट, ओ माय गॉड कितने प्यारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ओ लाइक व्हाट आर
they doing, और उनकी पूरी लाइफ और मैं सब में fully invested हूँ ना, and I'm looking at it. तो I was like कि यार ये तो बड़े fit हैं, इनकी तो बहुत ज़्यादा personalities हैं, and I was like कि यार अब मैं ये लोगों को कैसे बताऊँ, because you know insects, people are just grossed out by them. They're like ew, like insect, you know. So I started dressing myself as insects. This is me, by the way, ठीक है? But you will see कि हर insect की एक personality है, उसके पीछे एक story आपको feel हो रही है. तो that's how I started developing these characters and a story behind them. और फिर मैंने और different mediums use किया. That's a snail samurai over there, like, and this is a worm. I saw this post जिसमें वो कह रहे थे कि would you still love me if I turned into a worm? So I was like, yeah, I'll just turn into a worm, you know. Let's just see how that turns out. And people started relating with it. They saw themselves in these insect characters, and that was such an amazing motivation for me. And I started exploring more of these characters. Or this is my recent work. And you'll see कि अब color palette कितनी mature हो गई है. You know, the colors are not, they're not irritating to your eyes. They're very subtle and they're very calming और बहुत like अच्छे fit से colors. At least to me, they look really nice aesthetic wise. फिर मैंने उनको digital art में भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, जो मैंने कैरेक्टर्स अपनी क्रिएटिव फोटोग्राफी के थ्रू बना रही थी. अब मैंने कहा यार लाइक ओके, मैंने अब लोगों को इस तरीके से बता दिया अपनी ऑडियंस को कि इस अपने गार्डन के बारे में. आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर वेज जिससे मैं अवेयरनेस फैला सकूं या जो चीज़ें मैं सीख रही थी वो स्प्रेड कर सकूं. सो आई स्टार्टेड मेकिंग कॉमिक्स. दिस इज माई मैस्कॉट सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि मैंने बनाया है. और ये मैंने मशरूम्स के ऊपर एक बुक पढ़ी थी बाय डेविड अरोरा, और उसी के कुछ पेजेस मैंने इलिस्ट्रेट किए थे जस्ट टू स्प्रेड सम अवेयरनेस अबाउट मशरूम पोचिंग और हंटिंग एंड होर्डिंग एंड ऑल दैट स्टफ. फिर हाउ टू पिक अप स्नेल्स, जिस तरह होता है ना हाउ टू पिक अप चिक्स. सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स जस्ट टीच पीपल हाउ टू पिक अप स्नेल्स, बिकॉज तमीज़ ही नहीं है यार, स्नेल को उठाने का तरीका ही नहीं आता. सो आई मेड अ कॉमिक ऑन दैट कि लाइक एक स्नेल जा रही है रास्ते में तो उसको उठाना कैसे. सो इट्स लाइक इंटरैक्टिव, ठीक है. और फिर आई एम नॉट शेयरिंग द एंटायर कॉमिक, वो बहुत लंबा है, तो मैं इसका एक सेक्शन शेयर कर रही हूँ जिसमें लाइक यू नो वो लाइब्रेरी जाती है और वो बुक ढूंढ रही है कि यार मुझे पता चलना है कि कैसे. सो उसमें आई एडेड दीज प्लेफुल थिंग्स ताकि लोग जो है ना वो हुक्ड रहे इन द कॉमिक. दे डोंट फील ग्रोस्ड आउट कि ओह स्नेल्स, सो लाइक हाउ टू डेट अ स्नेल, you know. Snail fest है, slime digest, you know, history, shell care and all that stuff. फिर उसमें वो प्रोफेसर आ जाता है और बताता है कि यार उठाना कैसे है स्नेल को, ठीक है. I'm gonna tell you guys as well because what's the point if I'm not sharing that with you, ठीक है. So if you see a snail, तो आपने उसको थोड़े से पोक करना है ताकि वो अपने शेल के अंदर चली जाए, and then you pick that shell up. या आप सामने एक पत्ता रख दो, वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी और फिर आप उसको से यूं नहीं उठाना, इस तरह वो बेचारी यू नो उसको चोट लग सकती है. Okay. So yeah, okay, about this series. अब now you'll see कि मेरे काम में कितनी डाइवर्सिटी है. It's not just कि सिर्फ फोटोग्राफी हो रही है या डिजिटल पेंटिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है. स्कल्पचर्स भी आ गए हैं, फ्लैट लेड स्कल्पचर वर्क भी आ गए. मेरे जो प्लांट्स थे, सिंस दे आर सो डियर टू मी, तो मैं उनकी जो डेड बॉडीज होती थी ना उनको आई वुड जस्ट pick them up and preserve them. And one day I was just playing around with them, just having fun, और वो एक different creature बन गया. So that gave birth to my reincarnation series. Reincarnation series is basically nothing really dies. मतलब अगर हम लोग भी मर जाएंगे तो हम fertilizer बन जाएंगे ना. I know death is a scary concept, but at least कीड़ों की तो party होगी ना, like you know they'll have a feast, right? So that's what my purpose is of this series. अब आप like you will be seeing a pattern over here कि जो मेरा सारा काम है उसका पर्पस ये नहीं है कि मैंने मशहूर होना है, ठीक है. उसका पर्पस ये नहीं है कि यार मैंने कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है या मैंने कोई ट्रेंडी काम करना है या मैंने वायरल होना है. उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस एक ही है कि मैंने स्प्रेड करनी है अवेयरनेस, जो चीज़ें मैं खुद सीख रही हूँ, आई जस्ट वांट टू शेयर इट. और वो साथ साथ खुद ही क्रिएटिव वेज मुझे जेन्युइनली लाइक एक ऑर्गेनिक वे में खुद ही आ रहे हैं.
इस सीरीज से इंस्पायर होके मेरी नई सीरीज आई है विच इज़ लाइक बोटैनिकल इलस्ट्रेशन, लेकिन इट्स मोर डिज़ाइन रिलेटेड. The colors and all that, it's a bit flat. थोड़े से इसमें realistic rendering इतनी ज़्यादा नहीं है. So now you see that I ended up developing an identity as an artist by going through all of that journey. मेरी एक identity बन गई. Like you see a lot of different things over here, but सबकी color palette, सबका context, सबकी aesthetic same है. You can tell कि ये एक ही person का काम है. Right? It's like a story. और उस सब के साथ साथ while I was sharing this, मेरी audience उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक बहुत organic level पे ना they started relating with it. और they started sending me pictures of insects जो कि उनको नज़र आते थे. This is what should be the aim. कि आप अपनी एक ऐसी community बना पाओ जिसमें लोग आपके साथ उस level पे relate कर सकें. ठीक है? फिर people started asking me कि यार तुम prints क्यों बेच रही? I want to buy prints, and that's how I started earning through my work. ठीक है? That's when I started making money and living off of my work. तो मैंने I started selling prints. मैंने different merch items बनाए. पैकेजिंग पे काम फोकस किया जो कि बिल्कुल मेरे से रिलेटेड हो. Even if I did fan art because I watch anime a lot and all that stuff, so even if I did fan art तो वो भी मेरे आर्ट स्टाइल में ही थी. फिर मैंने अपना काम कॉन्स के ऊपर एग्जिबिट किया स्टॉल्स पे, and the response of the audience was so heartwarming. They were just like look at them. I mean मैंने उनको ये कहा तो था कि यार मैं पिक्चर ले रही हूँ so that I know they smiled and all that, but yeah, that's genuine smile over there. So this is like an organic community which we want. ठीक है? फिर people reached out to me for commission work and they were like, hey यार मेरे पेट को इस अपने स्टाइल में बना दो. I was like, yeah, sure thing, I'll do that. फिर उसके बाद एल्बम कवर्स आ गए हैं, बुक इलस्ट्रेशंस आ गए हैं, इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा कमीशन है. What the hell just happened? Sorry, I'm a little boomer when it comes to technology. So yeah, a lot of commission, मतलब एक ये source of income भी start हो गया. फिर I got featured in a lot of news articles, magazines. Pantone ने मेरा काम share किया. This is another international magazine, Sabo Art magazine. फिर उसके बाद I got the opportunity to exhibit my work. I was like, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं काम exhibit भी करूँगी, but it just landed खुद ही से ही. तो WWF hello बिल्कुल like on theme है यार, मतलब बिल्कुल plant nature related. लाहौर डिजिटल फेस्टिवल में भी मेरा काम एग्जिबिट हुआ था. फिर there's this builder मॉल की ओपनिंग थी तो उसके ऊपर भी एग्जिबिट हुआ था. I'm sorry, I just keep clicking weird. Yeah, okay. And then my work also got exhibited in South Korea. So yeah, aista, you know, I'm getting work, I'm getting recognition, but it wasn't intentional. मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, मैंने कोई मूड बोर्ड्स नहीं बनाए हुए थे, या मेरा कोई जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था ना वो स्ट्रेस नहीं था, वो लाइक एक रैट रेस की वजह से नहीं था. इट वॉज ऑल ऑर्गेनिक, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई पैशन. अब मैंने कहा कि यार अब मेरा एक स्टाइल और आइडेंटिटी सब कुछ डेवलप हो गया. सो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू ट्राई अदर थिंग्स. आई वॉन्ट टू try illustrations. I want to try character design in a cartoony style. So I made a new page. Okay, and this is also my work, but in a different style. So मैंने अपनी लेडी मेंटिस कैरेक्टर, द मेंटिस कैरेक्टर यू सॉ, उसको भी मैंने इस स्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट उसका कैरेक्टर डिज़ाइन है. लेकिन ये डिटेल है बिकॉज आई एम अ मैक्सिमलिस्ट. तो मैंने डिटेल्ड इंटीरियर्स बनाना स्टार्ट कर दिए. एंड दिस इज़ अ कॉटेज किचन. यू विल गेट टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट बिकॉज इट्स फुली डिटेल्ड. अब इस आर्ट स्टाइल से I started my web comic. You see like कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती आ रही है. ठीक है? It was on
animals doing silly stuff. Moss Comics is about animals doing funny, stupid, silly stuff. ठीक है, like वो जाता है nature में argument के बाद ताकि उसको कुछ सुकून मिले. लेकिन nature is already so dramatic ना. Like King Arthur वाला reference है UFO IVN. That's just there because you get to see weird stuff in nature. So it's just daily comics, funny humor, animals doing silly stuff. अब ये quoting है. You know, old school quoting में क्या होता था, वो बंदा कहता है यार देखो मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया है, like मैं तुम्हारे लिए घर लेकर आया हूँ, like पूरा nest बनाया हुआ है. She's like okay, and then there's this other guy who's like यार मैं तुम्हारे लिए पूरा शिकार पकड़ के लाया हूँ, like look at that dude, and she's like yeah I'm vegan. Then there's this new guy, like cool guy, and he's like cuffing and everyone's like oh my god ये कौन है, और उसने क्या किया है, modern dating. उसकी पोस्ट लाइक की है, उसकी रील लाइक की है, ठीक है, उसकी स्टोरी लाइक की है. शी इज फुली इनटू हिम. तो फिर वो बेचारे जो ओल्ड स्कूल गाइज हैं वो बस अपना चिल कर रहे हैं उसके वही नेस्ट में. देयर जस्ट चिलिंग एंड डूइंग देयर. सो यू अब ये वाला कॉमिक कैसे इंस्पायर हुआ? हैव यू सीन बर्ड ऑफ पैराडाइज? लाइक उनके मेटिंग रिचुअल्स होते हैं इतने क्रिएटिव एंड देयर जस्ट क्लीनिंग एवरीथिंग और वो इतना प्यारा सा बना रहे होते हैं. तो आई वाज लाइक ओके दैट्स लाइक रियली कूल. तो उससे मुझे ये कॉमिक की इंस्पिरेशन मिल गई. So you see that all of the inspiration is organic. It's like what I'm passionate about. So now I have a very diverse portfolio. I can do creative photography. I can do character design and like realistic rendering. I can also do botanical illustrations. I can do sculpture work. I can do cartoon illustrations. And I can also make comics. ठीक है, I had no idea I would be able to do that, but yeah, it happened. So what's the takeaway from all of this? अब takeaway ये नहीं है कि यार मैं कह रही हूँ कि आप सब गार्डनिंग स्टार्ट कर दो तो आपको अपना स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है, या आपको अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी. You know, that's not the takeaway from it. The takeaway is कि use your passion, whatever you're passionate about. Use that as a source of inspiration. अगर आप कंपटीशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक या रैट रेस में पड़े होगे ना और उसको एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज करोगे तो यू विल हैव फोर्स्ड आर्ट, यू विल क्रिएट फोर्स्ड आर्ट. बट इफ यू यूज योर पैशन तो आप जेन्युइन सोलफुल आर्ट क्रिएट करोगे, ठीक है. एंड देयर इज अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. मेरा कोई एक ऐसा दिन नहीं हुआ जिसमें मुझे आइडियाज ना आए हो. इवन व्हेन आई एम गोइंग थ्रू अ बर्नआउट आई हैव ऑलवेज हैड आइडियाज. And I have this मतलब एक डायरी है जिसमें मैं आइडियाज लिख लेती हूँ when I'm unable to do it. So that's because मेरा जो source of inspiration है वो मेरा passion है. But अगर मैं source of inspiration को you know rat race बना दूंगी या और चीज़ें stress बना दूंगी तो फिर मेरा जो inspiration है ना वो एक टाइम पे the well will go full on dry. सही है? Next thing is burnouts are fine, dude. Like चिल करो, लाइक मतलब जब बर्नआउट होता है एंजॉय करो, मूवीज देखो, शोज देखो. दे आर जस्ट मेंट टू रीसेट, रिचार्ज, ठीक है. उनसे डरने की जरूरत नहीं है. इवन इफ यू आर गेटिंग आइडियाज ड्यूरिंग योर बर्नआउट जस्ट राइट देम डाउन, ठीक है, बाद में बना लो, इट्स फाइन. सो बर्नआउट से डरने की कोई जरूरत नहीं, हर आर्टिस्ट को आते हैं. हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया है, हम सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं. I have multiple hobbies other than art, like drawing and all that stuff. I do knitting, crochet, sewing भी कर रही हूँ, embroidery भी कर रही हूँ, gaming भी कर रही हूँ. So I have like a lot of hobbies. और इन hobbies को मैंने अपने तक रखा हुआ है, ठीक है. मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे शेयर कर देती हूँ just because I want people to know the person behind the art, ठीक है. I want them to understand कि there is a human behind it. और उसके और भी शौक है और सब कुछ. बट मैं ये प्रोजेक्ट्स फुली नहीं शेयर करती. दे आर जस्ट माई स्टफ, ठीक है, और ये मेरे लिए है. यू कैन ऑल्सो हैव अ सीक्रेट आर्ट जर्नल, अ सीक्रेट पेज जिसमें लाइक आप पे कोई प्रेशर ना हो, आप जो मर्जी बनाओ, फजूल डूडल्स बनाने, जैसी मर्जी आर्ट करो. इट शुड गिव यू सम फ्रीडम, ठीक है. हमेशा जब हमें फिर वो परफेक्शनिज्म वाली जो चीज़ होती है ना उससे आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो. मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, oh my god, this is the most important thing ever, ठीक है. like especially जो freelance artists होते हैं या remote artists होते हैं, हम बिल्कुल vampires बन चुके हैं,
ठीक है, लाइक ना हम धूप लेते हैं, ना हमें विटामिन डी मिल रहा होता है, ना हम कोई स्टेप्स अपने कर रहे होते हैं, नर्ड नेक्स निकल रही है हमारी यार, लाइक क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस पॉस्चर, अजीब सा पॉस्चर बन गया, नर्ड नेक्स आ गई हैं, धूप मिल नहीं रही है, आयरन डेफिशिएंसी पहले ही हमारे में हुई हुई है. सो इफ यू गाइज आर नॉट गोना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ तो आर्ट कैसे बनाओगे? जान है तो जहान है, राइट? सो यू गोटा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू गोटा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अपने ईयरली ब्लड टेस्ट करवाओ, स्टेप्स डेली स्टेप्स करो. जिम नहीं जा सकते तो यार यूट्यूब की वीडियो लगा के कमरे में ही स्टेप्स पूरे कर लो, जस्ट मूव अराउंड. ठीक है, योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी जस्ट neglect it, we don't take care of it. Sugar ना खाओ यार, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, sugar is like so bad for your health. I'm just gonna say it. So yeah, and also social media detox, that's also very important. अगर आपको किसी आर्टिस्ट से चिढ़ हो रही है तो यार ना देखो उसका काम. कोई उसने आप पे गन नहीं रखी हुई कि यार मेरे काम को सपोर्ट करना है, तुमने मेरा आर्टवर्क क्यों नहीं शेयर किया. नहीं, कोई आर्टिस्ट ऐसे नहीं कर रहा, ना ही किसी को ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपने उसका काम जो है जैसे ही उसने अपलोड किया तो आपने शेयर करना है. ठीक है, अगर आपका मेंटल हेल्थ या मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस वक्त तो आप थोड़ी देर के लिए ना साइड पर हो जाओ आर्ट कम्युनिटी से. ठीक है, जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो देखो अभी. तो जब आप मेंटली थोड़े से बेहतर हो जाओगे देन यू गो एंड सपोर्ट योर फ्रेंड्स इन द कम्युनिटी. माइंडसेट चेंज. ठीक है, लाइक मैं पूरी टॉक में आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस माइंडसेट चेंज थिंग, द रैट रेस जो कि हम देख रहे होते हैं. यू सी लाइक Instagram पे ना everyone has the well curated feeds. They're gonna post the best thing about their work या जो उनको opportunities मिल रही हैं या जो वो achieve कर रहे हैं, they're just gonna post that. ठीक है, so आप लोगों ने दूसरों की लाइफ पे फोकस नहीं करना बिकॉज वी डोंट नो कि उनके बैक एंड पे उनकी क्या स्ट्रेसेस है. मैंने इतने ज़्यादा कमीशंस किए हैं जिनमें मैं रो रही होती हूँ. ठीक है, अब क्लाइंट को जब मैं कमीशन दे रही होती हूँ शी इज लाइक वाओ बहुत अच्छा बना है, लाइक यार मुझे बहुत मज़ा आया बनाते हुए. ठीक है, सो दैट्स माई बैक स्टोरी. नो वन नोज दैट कि यार मेरा भी कुछ बैड डे आ सकता है या मेरा भी कुछ बैड सीन हो सकता है. सो इसी तरह यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाकी जो आर्टिस्ट है कम्युनिटी में उनके भी बैड डेज हो सकते हैं. ठीक है, उनके भी एंड पे उनके भी चैलेंजेस होते हैं, उनकी भी डिफिकल्टीज होती हैं. इफ़ दे आर गेटिंग अचीवमेंट, लाइक इफ़ दे आर गेटिंग मतलब वो आप जल्दी क्लाइंब करें लैडर को, सो वी शुड जस्ट बी यू नो टेकिंग दैट एज एन इंस्पायरेशन. We should be understanding कि यार अच्छा उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज सो इंस्पायरिंग कि वो कितना फोकस्ड है अपने काम पे या जो भी है. सही है, सो दैट्स लाइक द माइंडसेट चेंज वी नीड टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर वर्क एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट आर वी पैशनेट अबाउट. सो या दैट्स अबाउट इट. एनी क्वेश्चंस? थैंक यू. So, do you guys have any questions? Please, मुझसे आसान questions पूछना. I'm like yeah. हाँ, क्लॉथ्स या चार्ट पेपर लगाया होता है, like serious. That's about it. या मैंने एडिट करके ना पेंट किया होता है बैक पे. So yeah. कोई फैंसी सेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो लाइट्स नो नथिंग, इट्स जस्ट एडिटिंग एंड ऑल दैट्स लाइक प्रॉप्स जो घर पे आपको इजीली मिल जाते हैं. ओके, सो एनीवन एल्स? Do you yeah. How did you know to price your work as your work is so unique? हाँ. इतनी value है, market इतनी niche है. Yeah. इसमें भी लोग अभी इनके देसी clients से national में कहते हैं इसको copy करके करो. ओके, सो मेरी जो प्राइस है ना वो मैंने अच्छा अब इससे शायद आर्टिस्ट डिसएग्री करें. जो मेरी अप्रोच है, मेरी अप्रोच ये है कि मेरा पर्पस ये है कि मेरा काम हर किसी के पास हो. आई वॉन्ट कि हर इंसान के घर में मेरा काम लगाओ. ठीक है, अब उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते बिकॉज देयर ऑन अ बजट. ठीक है, उसमें बहुत अमीर लोग भी आ रहे हैं. सो आई हैव डिफरेंट आइटम्स. मेरे पास स्टिकर्स भी हैं और मेरे पास लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स भी हैं जो कि अमीर लोगों के लिए हैं. ठीक है, लाइक अमीर क्लाइंट्स के लिए. बट देन आई हैव प्रिंट्स ऑन अदर टाइप ऑफ पेपर्स जो कि और लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, दे कैन गेट माई स्टिकर्स एंड बुक मार्क्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई वांट कि मेरी जो प्राइसिंग है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो.
कमीशंस में नहीं, मेरी कमीशंस में एक सेट प्राइस होती है. ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मैं उनसे डिफरेंटली चार्ज करूँगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी ऑडियंस, बिकॉज यू नो हमारी डेमोग्राफिक एंड ऑल दैट स्टफ, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. क्योंकि सो दैट्स दैट. अगर किसी को प्लांट एडवाइस चाहिए, आई कैन गिव यू गाइस लाइक टिप्स. एनी अदर क्वेश्चन? Yeah. Thank you so much. Yeah. No, that's so nice. I'm so glad. Thank you so much. Thank you. So, yeah. Just like you said, for your commission, your style is so unique. How did you decide on the price? Like, can you give insight to that? Price, I know it's like a very subjective thing because मैंने कुछ आर्टिस्ट को देखा है जो कि सिर्फ एक कार्टून, लाइक इतने से कार्टून के लिए भी दे बी चार्जिंग $50, $70 and all that stuff. ठीक है, तो मैं ये करती हूँ कि जब मैं कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ ना अपनी ऑडियंस को, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पेट पोर्ट्रेट्स अभी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं शुरू में प्राइसेस कम रखूँगी. ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम बना सकूँ, मेरे मतलब पोर्टफोलियो में ज़्यादा चीज़ें आने लग जाएं, फिर मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊँ कि यार देखो मैं काम कर रही हूँ. फिर इस तरह वो इनकरेज होंगे, दे विल हायर मी अप कि यार अच्छा. आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू इंक्रीज द प्राइस. ठीक है, और अगर तो आपको बाहर से काम मिल रहा है ना, देन यू हैव टू सी कि वहाँ पे मार्केट रेट क्या बाकियों ने रखा हुआ है. एक और बहुत मसला होता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं ना, जिस तरह ये इंडोनेशिया से आ जाते हैं या और डिफरेंट, वो अपनी प्राइस बहुत कम रखते हैं. उसकी वजह से जो हम लोग होते हैं ना, फिर हम लोग सफ़र करते हैं बिकॉज वी आर जस्ट लाइक शिट मैन, मतलब $15 का उसने पूरे इलस्ट्रेशन का कह दिया कि मैं बना दूंगा. देन यू आर लाइक यार मैं इससे कम तो नहीं कर सकता, लाइक मैं 15 तक तो नहीं जा सकता ना, यू नो. तो ये कुछ आर्टिस्ट करते हैं जो कि आई बिलीव हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है, मतलब अपनी प्राइस को इतना लो नहीं करना चाहिए कि जिससे बाकी आर्टिस्ट जो हैं उनको भी नुकसान हो. ठीक है, सो वी टू अंडरस्टैंड कि मार्केट रेट थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो उस चीज़ को. हाँ, आई नो कि हमारी एक साइकी है कि यार अगर महंगी चीज़ है तो उसमें वैल्यू ज़्यादा है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, बट आई मीन ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, अब है तो है. बट दिस इज़ जस्ट हाउ आई यू नो रेट माई वर्क कि मैं उसको मैं क्लाइंट को भी देखती हूँ. आई ऑल्सो सी द क्लाइंट. ठीक है, यू सी कि यार ओके अगर यू नो क्लाइंट के पास है उतना तो वो कर सकता है मैनेज. देन यू जस्ट लाइक यू नो देयर वाज दिस मीम कि जिसके अंदर वो कहता है कि ओह सो व्हाट्स योर बजट. ठीक है, तो वो पहले लिखता है कि यार 2 बर्गर, और फिर वो कहता है मेरा बजट 300 है. इट्स लाइक या 300. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दैट. ठीक है, यू जस्ट हैव टू think यार okay मुझे थोड़ा सा client ना उम्मीद लग रहा है, so yeah I'll just charge a bit more with that. So you just go with that flow, get it? Like I mean that's how I do it. I'm not that, I don't know, maybe pricing wise I guess abhi mujhe I have to learn more about that. So any other question? Do you guys want to know about plants? Any other plant related question? I'm here to guide you. Okay, so I'll just tell you about indoor plants, which you can get if you're into indoor plants. So yeah, if you're just getting into gardening and all that stuff, and you want indoor plants, so you can get like low maintenance plant, जिसमें snake plant आ जाता है. It's an air purifier as well, और उसको इतनी light नहीं चाहिए होती है. And then you can also get palms. ठीक है, money plant. मनी प्लांट इज अ गेम चेंजर. ठीक है, पोथोस यू कैन गेट वन मनी प्लांट, उसको आप प्रोपोगेट भी कर सकते हो, कट करके पानी में भी लगा सकते हैं, इट विल ग्रो रूट्स. सो या दैट्स दैट. थैंक यू एवरीवन. इट वाज अमेजिंग ऑडियंस. या थैंक यू.